मैं confession करना चाहता हूँ. I don't know whether I should say it, but when Deepika did come out in the open about it, you know, कुछ हुआ होगा जिंदगी में, personal life में, जिसको वो overcome नहीं कर पाई, तो you know, it comes across as a weak human being. यार इतने में आप depressed हो गए, और यहाँ हम लोग क्या-क्या मतलब क्या-क्या झेल लेते हैं लोग, और कुछ नहीं होता. लेकिन मैं इस बात को समझा ही नहीं कि it is a clinical issue. Radio City. Amar Shabai Bandhu Bengali Ache, and I can safely say this superstar of a singer, Amar Bandhu, is Ache, because I feel we've known each other for so many years. How are you, Shan? Kemon aso? ভালো আছি, মজায় আছি, আর পুরনো বন্ধু পেয়ে আরো I'm very thrilled, very happy. Of course, Archana and me, of course, go back so many years, and well, I mean, she's exactly the way I met her a good 15, maybe that's a bit much, 12 years ago. Makeup se त्वचा का पता ही नहीं चलता. त्वचा, no, the hair, everything wonderful, Archana. But yeah. So, you know, Shan, I've been meaning to ask you, क्योंकि लॉकडाउन से हम लोग का इंटरव्यू होने वाला था, ऐसे कोई नहीं रहा है, क्या हो रहा है? फाइनली वन तन्हा दिल, मैंने अभी हमारे बहुत यंग मिलेनियल है, उनको मैंने तन्हा दिल ओरिजिनल सुनाया, which I have not heard. Oh, what a song! Come here yourself. So I just want to say, हम लोग तो वो गाना, Mithali, tell him you love. I song. I am feeling so sad. मैंने पहले नहीं सुना. हाँ, so she's quite a musical lover. Thank you, Mithali. No, that's okay. In fact, reason I'm saying this is, ये गाना हम सुन के बड़े हुए हैं. मुझे अभी भी याद है, there was a moment when my nephew used to listen to the song and he used to keep going like this. He was not even a year old. He just gotten on his feet. And then we said, what is this impact, Shan? I think हिमेश रेशमिया के पहले अगर किसी का ऐसा impact था, वो आपका. I know I'm saying that safely because kids, to have an impact on kids is quite a musical revelation. Just to ask you, क्योंकि हम लोग अभी तन्हा दिल की बातें करेंगे, वो गाने में एक चिसनेस है. वो जब गाना शुरू होता है तो ऐसे लगता है घने जंगल में आ गए हो. उस गाने का इनफैक्ट आई थिंक वीडियो भी बहुत अलग था. इट वाज रिवाइंड, यू नो. सो सिंस थोड़ा मैं जाने वाली उस इंटरव्यू में, यू हैव टू टेल अस, शान, बिकॉज़ दैट वीडियो, दैट सॉन्ग, एवरीथिंग वाज मैजिकल. प्लीज बताइए. Sure. Actually, before we get into the earlier Tanha Dil, I just want to clear one little, maybe, you know, misconception ho sakta hai. The song that is released now is just the only commonality is Tanha Dil Tanha Safar. I know. It's a brand new song. So at that time when I made this song, I you know, Ram Sampath, of course, you know, ye jo ghana jangal wali baat hai, jo feel hai, the entire production, the music, the sound, the composition belongs to Ram Sampath. My contribution, of course, was walking in the video and, of course, singing the song and writing the lyrics. Doing this. So I wrote Tanha Dil at that point. Doing this to his hair. Doing this to my whatever. I love your hair there. Yeah. There's a little bit left of it still. But, please, Shan, you look as young as ever. No, but then, you know, I wanted to write a song at that point for my friends who had left. You know, we were all together in school, और फिर एक-एक करके, you know, college के दौरान सब कहीं ना कहीं US, Australia, Dubai, सब भाग गए. And I felt this crazy thing, this brain drain कहें, या फिर, you know, how people emptiness are not finding enough. No, it was actually a song from their point of view. Perspective. That when you're there and from their perspective, that, you know, you leave so much behind for something that you're not sure of. You know, when you go there, you realize that, you know, all those things that you thought of might actually not happen, but for sure, you know, your friends, your family, your hometown, all that is behind you, and it's a call that you've taken. You can't इसलिए वो ढूंढे तुझे फिर क्यों ना. I know that this is a travel I've gone into. ये सफर ऐसा ही होगा, and why am I still then, you know, thinking back at all the things that I've lost out on. So basically, when I wrote that song, it had a kind of a hidden agenda about those who, you know, who probably feel that, you know, I can go there and I'll have a better life or a better lifestyle. Sometimes you lose out on life looking for a lifestyle. So that was the agenda. वो lyrics आपने लिखे थे? जी. What meter? Like, I'm just asking, how does that happen? Like, एक ट्यून आपके अंदर बज रही थी क्योंकि आप कंपोजर भी हो, एंड आई नो कि राम संपत नहीं, ये मैंने ट्यून बन चुकी थी. और राम ने मुझे ये ट्यून जो है, तभी एक जापानीज फ्लूट है वो शाकुहाची,
उस फ्लूट के टोन में दिया था, तो मुझे पूरा क्या 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 गाना जो है क्या? I ना, want to say this. और I want to say this instrument name. क्या है? that's a shakuhachi is like an oriental flute. Shakuhachi. Okay. Shakuhachi, yeah, it's an It oriental sounds flute. So almost Bengali only. that's how it'll play, you know. So it almost felt like I should write a Chinese song or a Japanese song on this because you know that tone was so oriental. So Shan, I think it has so to do with you. Bengalis थोड़े से Japanese, Chinese और मेरे आंखें भी लगते हैं मेरे हिसाब से, मेरे फ्रेंड्स भी लगते हैं. लेकिन वो बोलते हैं ना, क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, दे प्री डिटरमिन्ड स्ट्रोक के लिए तैयार हो जाते हैं कि अभी जैसा भी बॉल आएगा मैं इस पर वो ही मिड ऑफ में मारने वाला हूँ शॉट. तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि अभी जो भी ट्यून राम मुझे भेजने वाला है मैं लिखूंगा तो उसी टॉपिक पे लिखूंगा. और फिर यू नो, I mean, sometimes things just fall in place. You know, Shan, but it's so strange कि friends के साथ in touch में रहना, family के साथ एक healthy relationship रखना, which touchwood I have seen you and your wonderful wife keep. It's such an important part of our lives. Tanhai can be detrimental to everything. आपका emotional, mental, and I think human beings are emotional beings. Of course, yeah. करना चाहेंगे आपकी लाइफ की जर्नी में, if ever, you know, एक कोई ऐसा मोड आया जब आपको तन्हाई महसूस हुई या यू नो मे बी थोड़ा लो फील कर रहे थे. You're an artist at the end of the day. Yeah, I honestly cannot recall even the slightest such a situation in my own personal life, Archana, but you know, पता है क्यों शान? I Because आप हमेशा स्माइल करते हो, and I know this sounds a bit forced, but it's true. You fake it till you make it. Sometimes you're not the best, but if you're smiling through it, at some level, आपका exterior आपको वो pull देता है, एक push देता है to just think more positive. I don't know अगर मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, but मुझे ऐसे लगता है आपको देख के. नहीं, I think you know क्या है कि there's one very important little bit that we have to understand, that you know हम दिल की बात करते हैं, तन्हा दिल की बात हो रही है, लेकिन the heart actually is just pumping blood, and you know that, right? It just beats faster sometimes and the excitement levels are up or whatever, you know. So it's everything, actually it's about the brain. And you know, there are these various, you have your dopamines, your estrogens, your serotonins, and all these various enzymes and these chemical reactions that happen in your brain is what helps you react. Or you know, ये smile के पीछे भी there are so many things that are going on, so many files that are being pulled out that have to, you know, come in together. And you know, and so what I'm trying to get at is you know, when we're talking about clinical depression, it's slightly different from depression. So what happened was, अगर ये शान आप हिंदी में बोलोगे तो मैं जी पहुंचा सकती हूँ रेडियो पे, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ ज्यादा लोग, बिकॉज़ आई एम सॉरी टू से बहुत लोग कहते हैं मुझे ये कि डिप्रेशन तो रिच लोगों का होता है, दे हैव द टाइम टू. नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई सोशियो इकोनॉमिक्स का इसमें कोई लेन देन नहीं है. नहीं, बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं. और देखिए क्या हो जाता है कि जो डिप्रेशन अपनी जगह एक सही चीज होती है कि कई बार, और ये नेचुरल चीज भी होती है. जैसे आपने मुझे पूछा कि समझ लीजिए मेरे करियर में कोई डिप आ गया या फिर कोई बड़ी बात नहीं. जैसे अभी अब इतनी सी बात थी कि इंडिया T20 यू नो पहले के 2 मैचेस इतने बुरे खेले, तो मैं वाकई डिप्रेशन में आ गया था. 2-3 दिन तक मैं मतलब बहुत अपसेट था, बहुत इरिटेटेड था कि क्या कर दिया, ये उसको जगह इसके खिलाते, ये करते वो करते, यू नो, जैसे हम लोग के दिमाग में चलते रहते हैं. बट यू गेट ओवर इट, कुछ चीजें ऐसी, कुछ भारी चीजें हो जाती हैं, यू नो, एक पर्सनल लॉस हो जाता है आपके साथ, या फिर यू नो किसी की नौकरी छूट गई, तो ऑब्वियसली उसको टू गेट ओवर दैट थोड़ा सा और वक्त लगता है. लेकिन इंसान कहीं ना कहीं वो हिम्मत जुटा लेता है, या कहीं ना कहीं वो उम्मीद जुटा लेता है कि मुझे आगे बढ़ना है, ये छोड़ देते हैं. लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बात को लेकर, उस एक ट्रिगर आप कह सकते हैं, एक छोटी सी एक हादसे के बाद मतलब महीनों तक खुद को फिर नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं. ना वो ठीक से सो पा रहे हैं, ना वो जागते ही लगता है कि मैं क्यों जागा हूँ. लोगों से, दोस्तों से यू नो पीछे हट जाते हैं. उन्हें आप जब मिलते हैं तो वो जो थे वो अब वो नजर नहीं आ रहे हैं. कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि उस हल्के से ट्रिगर के बाद जो उनकी जो ब्रेन है, जो सिस्टम है ना, उसकी थोड़ी सी जो वायरिंग में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो जो डोपामिन की आपकी जरूरत होती है, वो जो बैलेंस, केमिकल बैलेंस होती है ब्रेन में, वो बैलेंस कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाती है, छूट जाती है. वो सिक्रीशन ऑफ दोस केमिकल्स थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं. स्पेशली जो सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन आपकी जो एंजाइटी है, आपकी जो
एक संतुलन होती है ना ब्रेन में, वो सेरोटोनिन उस चीज को संभालती है। अगर वो कम हो जाए किसी वजह से, और ये कम स्ट्रेस से होती है, वो कम किसी एक हादसे के बाद अगर आपको अचानक से आप शेल में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आप कभी वापस नहीं आ पाते। और वो बट इट्स सो आपको स्ट्रेंज शान, आपको कभी ये हुआ नहीं है पर आपने इसकी काफी इन डेप्थ मेडिकल अंडरस्टैंडिंग रखी है ये। हाँ अर्चना, क्योंकि ये आप अभी अभी जिनका जिक्र कर रही थी, ये राधिका को हुआ। Yes, so she और That's so unlike her, right? क्योंकि राधिका साथ में रखती है, सबके बारे में इतना प्यार से सोच, मतलब one of the few people I know in the industry जो सबको खुश देखना जी जी जी, that thing about her, you know, बिल्कुल। अच्छा करे, सब कुछ रहे। और अचानक से जब ऐसे ही इंसान को किसी चीज में खुशी महसूस ना हो, तो फिर आप भी सोचने लगते हैं। और ऐसी कोई भी खास, हाँ उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की थी, उस कंपनी के जरिए चाह रही थी कि काफी इनफैक्ट इंसिडेंटली ये कंपनी की शुरुआत भी कहीं ना कहीं जैसे पवनदीप राजन जो वॉइस, मैं तभी उनका मेंटोर था और वॉइस उसने जीता था, तो उसके डैडी बोले अब मेरे बेटे को आपको ही संभालना है, आगे ले जाना है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सेंस आई कि चलो यार, ऐसे तो और कितने भी बच्चे होंगे जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आगे शो खत्म हो जाता है, उसके बाद उनकी कोई फ्यूचर नहीं होती। तो वो सोचकर शी स्टार्टेड दिस हैप्पीडेमिक। ये कंपनी 1-1.5 साल में काफी प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन एक प्रेशर भी है एक बड़े कंपनी को चलाना, 40 और लोगों को आपको, तो कहीं ना कहीं वो चीज उसके ऊपर वो एक प्रेशर बनता गया और किसी पॉइंट पे ये एक केमिकल डिप्रेशन में चली गई। और 3-4 महीनों तक मुझको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मैं सोच रहा था कि यार ये रेगुलरली एक्सरसाइज करती है, रेगुलरली जॉब जा रही है, क्यों लेट उठ रही है, ज्यादा सो रही है, और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा कोई हेल्थ का इश्यू है, तो मैं भी उस बात को नजरअंदाज करता गया। और फिर देखा कि यार ये बेवजह रो रही है और ये क्या हो क्या रहा है। फिर मुझसे भी ज्यादा उनकी जो बड़ी बहन है आशिता, उनको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, ये कुछ तो बात ये चल रहा है। क्योंकि आपको खुद ये बात की समझ तब तक नहीं आती जब तक कोई आपसे ये बात कहता नहीं, क्योंकि आपकी ब्रेन है और आप अपनी ब्रेन को ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आप जो भी आपकी समझ है वो तो आपके ब्रेन के जरिए ही आ रही है। और अगर शान, बट शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, उनकी आपके 2 बच्चे भी हैं, घर भी है, बिल्कुल ट्रैवल भी बहुत करते हो, सोशलाइज भी करते हो, तो क्या जी सारी चीजें कर रही थी कि वो शी इज ट्राइंग? नहीं, वो अवॉइड करना शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं एक गिल्ट आ गया था उसके मन में कि मैं अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर मैं ये नया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले चुकी हूँ। तो मैं उसको बार बार कह रहा था कि अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा काम कर रही हो, और इतने सारे यंग आर्टिस्ट को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। और देखिए प्लेटफॉर्म ये जो आपका वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म में डाल दो, ये वो, तो उसमें से उनको बेचारों को कुछ होता नहीं, कुछ मिलता नहीं एक्चुअली, लेकिन लाइव शोज करके एटलीस्ट कुछ रोजगारी जो होती है ना, उससे मुंबई आने, अपने रेंटल करना, अपना खाना पीना, अपनी एक डिग्निटी की जिंदगी आप बिता सकते हो। तो यही आइडिया थी। तो जो भी हो, करते करते आई रियलाइज कि दिस इज कहीं ना कहीं एक हेरिडिटरी इशू भी था। उनके पिताजी को भी एक पॉइंट था जब उनको ही वाज गोइंग थ्रू दिस, एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू काउंसलर्स, वी स्टार्टेड टॉकिंग टू डॉक्टर्स, we got to know that this is much more than just a phase. ये एक इसके लिए you have to take counseling, you have to start reading stuff, you have to start keeping a positive outlook, force a positive outlook. रोज उठ के आपको affirmations करने होते हैं। आप भी बहुत आध्यात्मिक हो, मैं जानता हूँ कि आप ये चीजें करती हैं, and you know how that helps you. Very often we go into एक साइकिल में हम चले जाते हैं जहाँ हर चीज नेगेटिव लगती है। किसी एक इंसान या एक हादसे की वजह से ना हम एक नेगेटिव माइंडसेट कर लेते हैं और लोगों पर शक करते हैं, सिनिकल हो जाते हैं। कोई भी कुछ कहता है तो उसका हम कहीं ना कहीं नेगेटिव मतलब ही निकाल लेते हैं, और उस साइकिल में हम स्पाइरल होते उसके अंदर घुसते जाते हैं। तो ये एफर्मेशंस करना, ये किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। मात्राएं बिल्कुल वेरी हो सकती है, मात्राएं वेरी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इसे टाइमली चेक नहीं करेंगी तो ये चीज एक केमिकल, एक क्लिनिकल डिप्रेशन पर पहुंच जाता है। And did she start taking medication, Shan? Did that help? Yes. I mean, she had to take medication because आप समझिए ना, अगर एक छोटी सी हेडेक होती है तो हम हेडेक के लिए मेडिसिन ले लेते हैं जी। जब माइग्रेन तक बात पहुंच जाती है, तो अगर आपके ब्रेन को आप सही सिग्नल आपका ब्रेन आपको नहीं दे पा रहा है, या तो समझ लीजिए कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से आपकी बॉडी एक्स बढ़ रही हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही हैं,
आपकी सोच खत्म हो चुकी है, आपको ना एक्सरसाइज करने का दिल करता है, ना लोगों से सोशलाइज करने का Oh, दिल करता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, और इसके लिए अगर आपको yeah, एक छोटी सी टैबलेट लेनी पड़े ताकि yeah. वो जो हल्का सा शॉर्ट सर्किट हुआ है वो फिर से रिज्यूम हो Join और हो. आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें, सो तो मेडिकेशन विच नाउ शी इज वीन्ड आउट ऑफ आल्सो। तो Wow. वो भी है कि वो अगर आप सही डॉक्टर के साथ, आप सही सलाह पे, आप सही मेडिकेशन पर आप जाएं, तो एंड सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप मेरे वीडियो में भी एंड में देखेंगे कि कुछ ज्यादा ही जंपिंग विद जॉय, बट यू एक्चुअली फील लाइक दैट यू हैव एक्चुअली fought the Conquered. biggest war, biggest battle of your life and come out stronger. आप Yeah. जब तक इस चीज पर आपकी कंट्रोल आ जाती है, उसके साथ साथ आप एक जिंदगी की जो एक मनोवृत्ति आपकी बदल जाती है। आपको हर Yeah. चीज और पॉजिटिव लगती है, आप लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं। आप किसी चीज पर रिप्लाई करने से पहले आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, आप थोड़ा रुक Yeah. के सोचते हैं। तो आज जो राधिका है और जो 2-3 साल पहले थी, there's a huge difference that I find because she went through this whole journey. But ऐसे And बहुत सारे हमारी यंगस्टर्स हैं। इंडस्ट्री में जैसे जब दीपिका ने भी इसके बारे में बात की, जी 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 करते हो या देखते हो, बिकॉज बहुत खुल के वो बहुत सारे शोज पे, जी 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 इनफैक्ट द वेरी सेम प्लेस केबीसी जहां आप भी गए थे, तो जी 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 कि when you see these interviews नाउ आपका एक अलग कनेक्ट होता होगा, आप अभी समझ पा रहे होंगे। हम देखते हैं तो हम सोचते हैं शिट क्या हुआ होगा, क्या गुजरी होगी। बट शान अभी जब इतने बड़े लोग आपकी तरह हुआ, सेलिब्रिटीज आर टॉकिंग अबाउट इट, कैसे लगता है आपको जब वो? अच्छा, मैं आपके साथ मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, और ये एक्चुअली आई एम अगेन वेरी गिल्टी ऑफ व्हाट हैपेंड, क्योंकि जब I don't know whether I should say it, but when Deepika did come out in the open about it, even someone, मैं तो शहरी इंसान हूँ, और बट मैं भी बहुत सिनिकली उस चीज को देख रहा था कि ऐसे क्या और होता मुझे है? भी यही लगा कि यार इतनी सक्सेसफुल है, इतनी लोग इतनी इनकी तो वजह क्या है glad you're डिप्रेशन? saying that, Shan, अगर एक because छोटी बहुत सी, लोगों ने खिल्ली हाँ उड़ाई। हाँ, I'm glad you're अगर saying that. एक छोटी सी इतनी सी बात कि चलो कुछ हुआ होगा जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाई, तो इट कम्स अक्रॉस एज अ वीक ह्यूमन बीइंग। यार इतने में आप डिप्रेस्ड हो गए, और यहाँ हम लोग क्या क्या झेल लेते हैं लोग, और कुछ नहीं होता। लेकिन मैं इस बात को समझा ही नहीं कि इट इज अ क्लिनिकल इशू, इट इज नॉट इशू ऑफ लाइफ की ओवरकमिंग हैपनिंग्स, समथिंग। हाँ, और ये हेरिडिटरी हो सकती है, ये किसी ड्यू टू एनी लाइफस्टाइल सिचुएशन ही हो सकती है। तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, इतना हेल्दी आदमी है, और हम कहते हैं कि अरे इतना हेल्दी आदमी है, उसको कैसे हो गया हार्ट अटैक? बट वेरी वेल होता है ना, it happens and it's happening, it's rampant. Yeah. Similarly this happens, and और जब ये चीज when it hit closer to home, I felt so bad. Of course I've never told Deepika or anyone about this, but that's when I realized what she was trying to say. But Shan, it takes a very very pure heart to say this, so thank you, because no I you honestly are voicing a million people's minds. You know that in the past ऐसे ही कुछ celebrities ने दीपिका की खिल्ली भी उड़ाई, और मुझे रोना आया, क्योंकि मुझे शायद maybe because I'm very sensitive, very emotional, तो मुझे लगता है हाँ हो सकता है, क्यों होता है we don't know, right? नहीं अर्चना, मैं आपको बात बता चाहता हूँ कि Deepika is one of the bravest people to actually come out in the open and talk about it, like Radhika has, and so many today. अगर आप, एक होता है ना कि एक ह्यूमन बीइंग को लगता है कि आई हैव टू बी रेजिलिएंट, आई हैव टू बी स्ट्रांग, मैं मेरी जो खुददारी है वो मुझे ये अलाउ नहीं करती कि मैं लोगों के सामने हेल्प मांगू, या किसी के सामने कहूं कि मैं बेबस हूं, मेरा ये एक मेडिकल कंडीशन है, और मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं या संभाल नहीं पा रही हूं। तो लोग हाँ खिल्ली उड़ाएंगे, स्टिग्मा है, ये है वो है, तो मैं बस खुद अकेले ही इससे लड़ूंगा। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक, दैट इज द बिगेस्ट, एक्चुअली दैट इज कावर्डाइज। वो खुददारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप एक मुखौटे के पीछे, एक नकाब के पीछे आप खुद को छुपा रहे हो, बचा रहे हो। लेकिन अगर आप सामने आकर लोगों से, अगर आप मतलब लोगों के पास नहीं जाना, लेकिन यू गो टू द राइट प्रोफेशनल्स, और यू गो टू योर ओन पीपल, यू कन्फेस टू योर ओन पीपल, योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है यार, मुझको बचा ले, मुझे कुछ हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन।
that is actually showing bravery, that is showing हिम्मत. But Shan, हम कई बार कहते हैं ना आप कि लोगों किसी ने को कैसे ब्रेव किया ये टचवुड. बहुत कम कपल्स के बारे में मैं ऐसे बोल सकती हूँ, पर आपका प्यार इज वेरी वेरी it's inspirational. I love the bonding you both have. In many ways, you've inspired me and in my marriage, in my affair. Oh, And sweet. I Thank must you. tell you that you guys are, I'm sure, even more closer today than before because of how you both braved this. नहीं और जब जब when it happens that close to you, then you realize कि नहीं, this is something that I want to talk about. This is something that we need to reach out and help more people. तो ये Lupin एक pharmaceutical company है और उन लोग ये campaign काफी in fact I had reached out to Live Love Laugh also, which is wow. you know because but at that time I didn't get the right response. So you know everyone has their own choice of what they want to support, but having said that you know it's a ये जो awareness campaign है वो बस एक गाने से या फिर you know आप और मैं you know थोड़ी बात किए उस पे, तो ये मुद्दा बहुत भारी है. तो मैं इस पर ना सिर्फ ये गाना लेकिन अब आगे काफी इस पर you know मैंने कुछ डॉक्टर्स से interviews किए हैं, कुछ I want to talk with survivors. Maybe I'll get Radhika to come and tell us how she you know I want to interview her. Firstly, I want to meet her and hug her. Sure, I love her She's so much. I shown know you know that, and it's amazing how तो you braved it. Wow. इस दिवाली हम लोग you know we actually went out, played cards, danced, and you know she's found her mojo back जिसे कहते हैं ना, वो वापस वही राधिका जो थी. और शान, मुझे ना पता नहीं क्यों थ्री इडियट्स का गाना बहुत याद आ रहा है, बिकॉज़ खुलापन और एक जॉय. आई थिंक वो फिल्म भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा जूझ रही थी और इसको बहुत ही कवर किया. जी बिकॉज़ आई थिंक all of us in our lives कुछ मात्रा में we go through this. Maybe the extent differs, जैसे मैं कह रही थी. बिल्कुल. But I definitely want to know कि if there was a movie, अगर एक फिल्म थी जिसमें इन्वॉल्व होके आपका डोपामिन बढ़ गया, because you're somebody who smiles that flashing smile और सबकी खुशियां बढ़ाते हो आपकी आवाज के साथ, आपकी गायकी के साथ. कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इन्वॉल्व होके आपकी खुशी बढ़ी? नहीं, खुशी तो मतलब खुशी के बहाने तो इतने सारे हैं कि क्या कहूँ. फेवरेट फिल्म ऑल टाइम जैसे सत्ते पे सत्ता, मुझे बहुत मजा आता है उस फिल्म में. और यू नो दो उसमें भी एक साइकोलॉजिकल एक सिचुएशन था जहाँ यू नो वो जो आई मीन वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम कि वो जो यू नो शी वाज अ व्हीलचेयर बाउंड गर्ल, आई थिंक रंजीता जो कैरेक्टर कर रही थी, बट इट वाज ऑल इन हर हेड. और फिर कैसे उसको मतलब वो डरा के ही सही या कोई भी इंसिडेंटली, वो बाबू तो आया था उसको लेकिन उस डर के मारे वो उठ गई और वो एक यू नो एक चेंज हो गया. तो मैंने कभी ऑफ कोर्स उस नजरिए से नहीं देखा था, नजरिए से इस फिल्म को नहीं देखा था. इट वाज जस्ट एंटरटेनमेंट. बट इट्स माय फेवरेट एज वेल. सत्ते में सत्ता. इज इट? अरे बाप रे, फ्रॉम द सॉन्ग्स टू या स्पेशली जब अमिताभ बच्चन, आई एम अ वाटरमेलन लवर, उसको वो वाटरमेलन प्रपोज करते हैं ना, मैंने रेडियो पे बोला था जो मुझे वाटरमेलन के साथ प्रपोज करेगा वो मेरा दिल लेके जाए. व्हाट. और फिर उसके बाद वो गाना गाएगा, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे. Because one of my all-time favorite songs, and yeah, तो हाँ, I think जिंदगी में of course it's funny जब आपने तन्हा गाया, हालांकि तो फनी a lot of songs जो melancholy होते हैं, जो एक तरीके से आपके वो हल्के से सैड साइड को दर्शाते हैं, but it's a big release for me. It's cathartic really कि मैं वो सुनती हूँ, थोड़ा सैड फील करती हूँ लेकिन अच्छा भी लगता है. It's a strange oxymoron mix of things. नहीं अर्चना, क्या हो जाता है, देखिए एक कुछ गाने होते हैं जो आप करते हैं फॉर प्योर एंटरटेनमेंट. यू नो आप चाहते हैं कि लोग उस गाने को सुने, एंजॉय करें, और बट एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि यू नो इट्स टाइम टू हैव अ टेक अवे विद योर सॉन्ग्स. तो जैसे कभी प्लास्टिक यू नो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अवेयरनेस पे गाना बना दिया है, पोल्यूशन पे गाना बना दिया. मैं तेरा हिस्सा हूँ, एक गाना मैंने हाल ही में रिलीज किया था. तो उस पे द टॉपिक वाज अबाउट हाउ यू नो यंगस्टर्स, हम यू नो हमारे जो पेरेंट्स हैं कहीं किसी हद तक हम उन्हें यू नो उनकी ओल्ड एज में उन्हें हम निग्लेक्ट करते हैं. और तो उस पर मैंने वो गाना बनाया. तो अब आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू यू नो द यंगर
और ये जो हम लोग अब तक ये डिस्कस कर रहे थे, you know, the shocking thing about this is that the biggest generation or the biggest age group that clinical depression is hitting is between 16 to 24. So it's a very important, हमें लगता है कि ये जो साल है, this is the best years of our lives. मतलब धमाल मस्ती करना है यार 16 से लेकर 24 तक, लेकिन कहीं ना कहीं it comes with the kind of pressures, the kind of responsibilities, the kind of you know expectations, performance anxiety, expectation कि मुझे अभी ये करना और ये वक्त ज़ाहिर हो रहा है, मैं क्या करूं, and these things are going on. This stress, this anxiety can lead to this kind of a thing. So it's very important कि ये जो गाने भी लोग सुन रहे हैं, ये डिप्रेशन वाले गाने सुन रहे हैं, लोगों को मैं कई बार ये कमेंट पढ़ता हूँ कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है फिर भी ये गाना सुनकर मुझको ब्रेक ऑफ का दिल कर रहा है. So कहीं ना कहीं, you know, we are pushing these youngsters into a state of temporary you know, kind of depression, temporary pathos. मैं कभी ये देवदास कब से बोलने लगे लोग? हाँ, बहुत ज्यादा ये हो रहा है, और ये बहुत आसान है क्योंकि सबके अंदर ये हार्मोन्स हैं, और आपको वो सैड हार्मोन को आप समझ लीजिए, किसी को हंसाना आजकल और मुश्किल हो रहा है, रुलाना आसान हो रहा है झट से, तो ये चीज को हमें इनकरेज नहीं करना है. लेकिन ये हार्ड हिटिंग मैसेज मुझे इसलिए देना था, चाहे बरसों पहले मैंने भूल जा भी गाना लिखा था, तन्हा दिल के साथ ही आया था. So भूल जा was also an anti-depressant song. It was भूल जा, जो हुआ उसे भूल जा, you know. So उस तरह से हमेशा यही कोशिश है कि हंसाया जाए, लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट रखें, लेकिन अगर आप बात को हार्ड हिटिंग वे से नहीं कहोगे ना, तो मैसेज नहीं जाता. मैंने जब ग्लोबल वार्मिंग पे मैंने गाना लिखा था, जो नार्निया में यूज हुआ था, you know, यही अंत की शुरुआत है, तो लोग बोल के यार ये सिहर गए थे, बोले कि ये भारी बात है, ये सब क्या कह रहा था. ऐसे नहीं, इफ यू डोंट हिट इट हार्ड, पीपल विल नॉट रियलाइज इट. तो उसी तरह से इस गाने में जो भी लिरिक्स है, दीज आर ऑल प्रॉपर्ली, जिसे कहते हैं ना, क्यूरेटेड और प्रॉपर्ली फिल्टर्ड, कि इट सेंड्स द राइट मैसेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन. यूं ही बेवजह क्यों उदास हूं, जाने ये कैसी प्यास है. मतलब क्योंकि कोई वजह नहीं है, और फिर भी आप जब उदास हो, यानी कि देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग. यू नो, कोई पूछ ले तो क्या कहूं, आखिर ये क्या एहसास है, क्योंकि यू कांट एक्सप्लेन. तो अगर कोई पूछे कि यार तू उदास क्यों है, तू दुखी क्यों है, तो बोल नहीं पा रहा हूं मैं, और वो मुझको और फ्रस्ट्रेट कर रहा है. तो मैं थोड़ा आपको गुनगुना कर गाना ही सुनाता हूँ, ताकि course, I was just going to tell you. जी. यूं ही बेवजह क्यों उदास हूँ, जाने कैसी ये प्यास है. कोई पूछ ले क्या जवाब दूं, आखिर ये क्या एहसास है साथ मेरे सारे वो अपने, अपनों में मेरे बस मैं शामिल नहीं. राहें खुली है कारवां भी, चल तो रहा हूँ मैं बेमंजिल कहीं. तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे मुझे फिर ये नजर. तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे मुझे फिर ये नजर. तन्हा दिल. Wow. तो कईयों को लगेगा कि मैंने ये Salim has done this, na? Salim has done the music for me. Yeah, he's done the whole. This is my composition, my lyrics, and I just wanted someone, you know, Salim ki, of course, सब कमाल के हमारे, you know, I have all friends in the fraternity. But he has some soul in his treatment. Yes. And actually, honestly, I had first approached Ram because, you know, राम के साथ मैंने ओरिजिनल बनाया था, लेकिन वो बात for some reason बनी नहीं, और you know, everyone has to be in that right state of right frame of mind to do it. और फिर of course Salim's been my go-to person, my brother for so many years now. So I think वो सबके 3am friend हैं. He's a darling. Salim's a lovely guy, and without any सवाल, without anything कि क्या करना भाई, कैसे करोगे, क्या करोगे, saying अरे anytime bro, you know, and he just added those beautiful embellishments, those very subtle
things that just lifted the song. So I'm very grateful to Salim. Also, I have to mention another name, Iqbal Rizvi, जिन्होंने इस video को बनाया. और the video, the whole storytelling is completely very compelling to again. him, because he was very, he's been someone who's been doing seminars. वो काफी मतलब 6 सालों से mental health पर seminars कर रहे हैं खुद. Though he's a big filmmaker, he's done a lot of TV serial, a lot of commercials, लेकिन काफी सालों से इस चीज पर, especially ये जो suicide tendencies होती है, उसको कैसे आप control करें, कैसे उसको, because ये mental depression leads to all to these wanting to take your own life. Yes, suicidal tendencies. So I couldn't find a better person to do this. So he Shan, I know कि, it's too small to ask, but Radhika कितनी खुश है इस गाने के साथ. I mean, honestly, she's one person who celebrates every milestone of yours like it's her own. नहीं, उसको भी every line of the song, every part of the video, she's been the consultant on the project. and she's very happy that I've done this. क्योंकि वो खुद भी on her Facebook, on her social media, she's come out in the open, spoken about it. So कहीं ना कहीं काफी हम लोग अभी doctors से भी बात कर रहे हैं. So how can you further it's something that yeah. And if you see the numbers, it is scary. बोलते हैं कि after accidents, this is the largest group of people who are suffering from a mental health situation. So 1 out of 5 is going through a mental health situation, aware or unaware. So it's time to इसके बारे में जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि इतने सालों से इसको एक स्टिग्मा बनाकर एक इसको ढाक के रखो, इसके बारे में बात ना करो, ये तुम्हारी कमजोरी है, ये एक मुखौटा है करके लोग उसको छुपा के रखें. Of course, इसको आप ट्रेंड ना बना दें. That is very important. Exactly. एक फेक ट्रेंड हाँ, एक फेक ट्रेंड ना बनाए. तो वो सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है. उसलिए मैं मतलब बस वो नहीं दिखाना चाह रहा था कि कोई किसी ने उसे छोड़ दिया या कुछ उसके साथ हो गया और फिर वो, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी में हमें उतार चढ़ाव हमें झेलना है और उसे हमें बहुत हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ना है. लेकिन ये उसलिए मैं पहले लाइन से कह रहा हूँ, बेवजह उदास. तो जब आप खुद को आप समझ नहीं पा रहे कि मैं ये तो कोई वजह नहीं हुई, मैं क्यों इतना उदास हूँ, then there is something that has gone wrong. You have to work on it. और इसको आप बहाना नहीं बना सकते हैं कि नहीं यार आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, या फिर मुझे नौकरी पे नहीं जाना है. तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है आप डॉक्टर बन सकते थे भाई. It's I mean obviously it's beautiful कि आपने उसको बहुत ही लूसिफाई और अर्चना पूरे अंतरे में ना इसका पूरा मैंने सोल्यूशन दिया है. वाह. हाँ, क्योंकि देखिए कोई प्रॉब्लम को, अच्छा ठीक है, तो तन्हा अभी अंतरे में ठीक है. खुशियों से रिश्ता, रिश्तों के वास्ते मुझको फिर होगा जोड़ना, इस दर्द को सीने में कब तक लेकर चलूं, इस दर्द को पीछे छोड़ना, शर्मिंदगी के पर्दे गिरा के मांगू सहारा, राहें खुल जाएंगी. इस तरह से ही चलता है थोड़ा सा. बट इन द सेंस दैट हम जब तक ये अरे यार वो शर्मिंदगी के पर्दे गिराकर मांगे सहारा तो राह खुल जाएंगी, जीने की एक वजह मिल जाएगी. if we believe in life, तो we have to live on. इस तरह का है पूरा. Beautiful. Shan, I'm so happy with just the intention. It's brilliant कि आपने ये and आपके कितने चाहने वाले हैं. I'm 100% sure कि इससे आपकी और, and I know it sounds very very small in front of the entire endeavor, लेकिन फिर भी तन्हा दिल एक गाना था जी लोगों को एक strangely positive feel देते हुए उनको out of their जी और अब ये गाना भी वैसा ही कुछ बन रहा है. Thanks. नहीं, बिल्कुल I think and I really thank you and Radhika for taking this decision कि आप कितने लोगों की हेल्प करना चाहते हो. आप इतने सक्सेसफुल सिंगर हो, बट फिर भी आपकी बीवी ने दूसरों के सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए सोचते हुए इतना बड़ा कदम उठाया. And today the same loss that she's suffering, she wants to make other people suffer. So y'all are simply amazing human beings. No. Great. Thank you, Archana. And I've always known you to be the very compassionate. आप हमेशा मतलब जो भी करते हो मतलब वो क्वीन साइज करती हूँ. और तो इसलिए मुझे
बताया कि you know Actually, it's I मैं think I आपके want to साथ do जो a शेयर series. कर सकता हूँ हर किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि I know that you know you we have a connect, इसलिए शायद कुछ काफी बातें खुलकर आपसे की. बट So thank you शायद so मैं कुछ much. प्रपोज करना चाहती हूँ. आई थिंक रेडियो पे इसका एक रेगुलर एक सेगमेंट बन सकता है राधिका और आपके साथ. Sure. Because I think you guys are not just a power couple, लेकिन you're also people who are sensitive. तो एक sensitivity और एक sensationalism जो आपके reach में है, वो दोनों को combine करते हुए with the great knowledge you all have. I think we should. नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, सिर्फ यही the fear of sensationalism is what it is. No, but the we word keep it. was wrong. The word was wrong. No, 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 My I'm kidding. meaning I know. being that sometimes Of course. pace You know, of a campaign is important. You know. very important, very important. And Yeah. coming from someone who's had a first, you know, a first person Reach sort with of the audience. Yeah, I really feel. no, a first person experience of it. You know exactly what you're talking about. So you can, Oh God, you yeah. can decipher वो जो फर्क है ना कि डिप्रेशन क्या है और क्लिनिकल डिप्रेशन क्या है और ये कहाँ तक क्या किसको कहाँ तक आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो surely we can do this. I'd love we'll to talk meet you about both this, and discuss this and further. we can do this. We can keep Yeah, this I as a think weekly thing. बहुत फर्क And I'm पड़ेगा. sure a lot of people will come forward already. You know, मेरे comments में इतने सारे हैं कि I've gone through this, I've gone through this. Thank you for talking about it. So उसी में सबसे खुशी मिलती है. Bless you, Shah. जी. Thank you. So Hasi. Let's hope it reaches everyone. Lots of love. बिल्कुल. Thank you. Thank you Bye, so darling. much. Thank you so much. Radio City.